So in the last class, we had done with the select and delete operation in this case. So just run the application. I think we are done with the search. Today's class, even search why we have done with the register page in this case. Okay. So आज के क्लास में we will perform the login page in this case. So login page में whenever you are entering the data, either you can use a mobile number and password or you can use a email ID and the password in this case. तो उसके लिए we will create one login page in this. So go to the student के अंदर templates, in the templates you can have one login page. तो login page को create करने के लिए generally easiest way is copy paste the register page. Okay, so I'll call it as login.html and login.html में मेरे को जो field चाहिए सिर्फ वही रखूंगा, बाकी का delete करूंगा. Like I don't take the student name नहीं चाहिए. I need mobile number to be entered. I don't want email ID. I don't want the course. I want the password in this case. ओके तो ये दो फील्ड होना चाहिए. सो आई हैव टेकन द सेम रजिस्टर पेज, उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ एंड रजिस्टर की जगह में आई विल मेक यूज ऑफ एंड वो जिधर ऊपर नीचे जिधर भी रजिस्टर बोल के हैं चेंज करो. सो द पेज इज क्रिएटेड. यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बदले में लॉगिन. ओके वेयर एवर यू हैव द क्रिएट वो सब ऑप्शन है निकाल के लॉगिन बोल के डालते हैं, उसको बाद में देखेंगे. whenever you create a new page in this, we go to the path URLs में जाओ, एक नया path ऐड करो वहां पे and just copy paste, give login and login डालते ही go to the views.py, add one function. so in this एक नया function def login, inside this request यहाँ पे एक msg वेरिएबल, उसके बाद as of now return render request comma login.html comma 2 flower brackets msg colon msg. okay just I want to see how the login page looks. इसी के जैसे दिखेगा with a small change. तो लॉगिन मेरे को फील्ड मिल गया. सो कर्सर उसके अंदर ऑटोमेटिक ब्लिंक होना चाहिए फॉर द मोबाइल नंबर. सो आई विल गो फॉर मोबाइल नंबर. यहाँ पे फर्स्ट टैग को मेक यूज ऑफ द ऑटो फोकस इक्वल टू ऑन. सेव करो एंड रिफ्रेश. तो कर्सर इज ऑलरेडी ब्लिंकिंग. वो हमारे पेज में ऑलरेडी मतलब ये पेज हिस्ट्री बोल के रहता है. सो इन द पेज हिस्ट्री it will be displaying whatever the previous data that you have entered, वो पेज हिस्ट्री में स्टोर हुआ है, इसीलिए it is showing with this particular form. so अभी next we have to write a code to perform this operation. वो similar to आपका log जो सर्च पेज है वही फील्ड यहाँ पे यूज होता है. so उसके लिए what we will do is in the views.py views.py के अंदर I have to take the input in this. So inside this if request dot method double equal to post, जो यूजर नेम पासवर्ड उसने टाइप किया उसको रिट्रीव करो. सो आई कॉल इट एज मोबाइल नंबर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मोबाइल नंबर, पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पासवर्ड. टेकन द मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड. ये मोबाइल नंबर पासवर्ड स्टूडेंट डेटा के अंदर है कि नहीं चेक करना. तो उसके लिए कुछ नहीं, सेम कमांड इज यूज्ड, दैट इज इफ
student data dot objects dot filter, इसके अंदर I will say mobile number is equal to request dot post inside this mobile number, comma password is equal to request dot post and make use of the password. Either you can write like this, और यहाँ पे हमने जो यूजर के पास इनपुट लिया था वो इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी एक्स्ट्रा 2 लाइन्स होता है तो निकाल दीजिए. सो डायरेक्टली यू कैन से if student dot object dot filter mobile number is equal to mobile number and password is equal to password comma soft delete equal to 0. this is very important, क्योंकि अगर वो यूजर soft delete हुआ है तो in that case we are not supposed to allow him to perform the login operation. तो उसके लिए soft delete equal to 0 dot exist. अगर exist true return करता है I have to go to the student का home page को redirect करना. स्टूडेंट का होम पेज को रिडायरेक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज डोंट यूज रिटर्न रेंडर, वी मेक यूज ऑफ रिटर्न रीडायरेक्ट बोल के बोलते हैं. वी मेक यूज ऑफ अनदर फंक्शन कॉल्ड रीडायरेक्ट. रीडायरेक्ट के अंदर आप स्टूडेंट नेम बोल के फंक्शन को कॉल करो. ये फंक्शन हमने नहीं लिखा है, सो वी हैव टू राइट दैट फंक्शन फर्स्ट. सो डेफ फंक्शन नेम रिक्वेस्ट colon return render open bracket close bracket request comma student student home dot html. यहाँ पे भी student home dot html. तो आई एम कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन. सो रिटर्न रिडायरेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, I am not calling the HTML page. I am calling a function by name student home which I have written here. और student home से I am going to student home dot html. यहाँ पे वो रिटर्न के साथ redirect बोल के नया फंक्शन है, उसको import करो. तो उसको import होने के बाद we are redirecting it to this page. अभी उसका एक पेज भी क्रिएट करना पड़ता है. So we will create one empty page as of now. I'll call it as student home dot html. HTML structure रहेगा student home से यहाँ पे एक h1 tag just to mention that it is student home. Next यहाँ पे आप HTML page create करे बोले तो you have to create a path also in this case. So I will call it as student home. Okay. So अभी क्या होता है, I enter the mobile number and password in the application. यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड एंटर क्लिक करता हूँ. लॉगिन क्लिक करते ही अगर मेरा मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड करेक्ट है तो it will come to views.py. it will check mobile number and password is correct or not. अगर करेक्ट है तो it will say return redirect student home. तो it will go to student home function. वहां से वो क्या करता है, student home HTML पेज को जाता है. okay. सेव करो, check with this. पता नहीं because we deleted most of the records in this case. login.html शायद मेरा है मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर रखे हैं. 9845356246. password might be Vivek. click on login. yes. So it goes to student home in this case. Okay. So just simple like a search operation. हम यहाँ पे भी हम search operation ही कर रहे हैं. वहाँ पे ID के base we had searched here based on the name. Name के बदले में here we are searching based on the mobile number, password and soft delete. And वहाँ पे क्या कहते हैं, we had performed the operation. यहाँ पे सिर्फ redirect करके हम दूसरा पेज को navigate करते हैं. Okay. This is the login page that we have in this. You can write down this. So in that case he can go for a change password in this. एक change password field के लिए we enter the current password क्या है लेना है, और he has to enter the new password and confirm new password. These are the 3 fields that is required for change password in this. तो उसके लिए और एक HTML page create करो. I'll call it as change password.html
and HTML change password, and in the next say heading 3 में change password, then I'll use a center tag के अंदर MSG, उसके बाद we have next is the form tag, form name is equal to change password, and method is equal to post, close out this. Say I'll use a label tag in this, that is current password, compulsory field है, so you can put a font tag with star symbol with color is equal to red, input type is equal to password, name is equal to change password, and auto focus equal to on, compulsory field है, so required. उसी तरह I will use a new password, auto focus नहीं चाहिए, confirm new password, you can enter even the auto focus नहीं चाहिए, placeholder is required for all, so placeholder, enter current password, use a sentence case for placeholders, password हो गया, सॉरी एंटर करंट पासवर्ड हो गया, एंटर न्यू पासवर्ड, एंड यहाँ पे हम प्लेस होल्डर में रीटाइप न्यू पासवर्ड, सो वी गॉट दिस, देन उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम btn सबमिट, एंड वैल्यू प्रॉपर्टी में चेंज पासवर्ड, input type is equal to reset, name is btn reset, value is equal to cancel. So we have created, उसको बाद में चैट जीपीटी को लेके डिजाइन करने के लिए बोलेंगे, so we'll make use of so using bootstrap, नहीं तो वो CSS यूज करेगा, so let him design that, तब तक go to the URLs, एक नया path ऐड करो, that is change password, उसके बाद in the views def change password request return render request comma dot html comma msg colon msg वेरिएबल को डिक्लेयर करो, so जब तक चेंज पासवर्ड कोड हुआ होगा, yes finished the code in this, he is asking for extra features like बैकग्राउंड इमेज डालना, क्या पासवर्ड स्ट्रेंथ वैलिडेट करने के लिए, मतलब स्ट्रांग है वो है, यू कैन ऐड दीज टू बैकग्राउंड इमेज और पासवर्ड थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ये सब जावास्क्रिप्ट में हम लिखेंगे बोला तो इट विल टेक मोर टाइम, so it will give some additional features in this.
तो इट इज ऑल्सो गिविंग द कंडीशंस कि वहाँ पे नंबर्स होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स होना चाहिए. ही इज गिविंग ऑल द स्ट्रेंथ इन दिस. इज गिवन फीचर्स. और एक्स्ट्रा चाहिए बोले तो दिखा रहा है, नहीं चाहिए मेरे को. दिस इज मोर देन सफिशिएंट. And go to change password. URL में. So this is the change password that we have in this case. तो जैसे मैं name password वो सब टाइप करता हूँ, it will check the feature also in this case. You can see it is showing you medium है. It should have all the features like numbers, characters, alphabets. सब टाइप करेंगे तो जितना complicate करते जाएंगे, it will give us the feature in this. तो ऐसे script में we can make use of the JavaScript and we can make the features in this case. तो अभी यहाँ पे when I type the current password and new password and all, the password change होना चाहिए. तो password change होने के लिए most important in this, आपके views में when you are performing the login operation, you need to change the data based on the mobile number in this case. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम रीडायरेक्ट करते रहते हैं, बिफोर रीडायरेक्टिंग वी विल मेक यूज ऑफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन. रिक्वेस्ट डॉट सेशन बोल के एक फीचर आता है, उसके अंदर मोबाइल नंबर बोल के इज इक्वल टू मोबाइल नंबर. ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग इज व्हाट एवर द मोबाइल नंबर दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर इन द लॉगिन पेज, वो एक सेशन वेरिएबल में स्टोर करते हैं. सेशन वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा विच कैन बी यूज्ड बाय द अदर फंक्शंस इन दिस केस. तो दूसरे फंक्शंस को अगर हमारे को कुछ डेटा सेंड करने का है, इन दैट केस वी मेक यूज ऑफ द सेशन वेरिएबल. तो यहाँ पे क्या होता है, द मोबाइल नंबर दैट वी हैव एंटर्ड हियर विल बी यूज्ड बाय द चेंज पासवर्ड फंक्शन इन दिस. तो उसके लिए वी मेक यूज ऑफ द टाइप इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन. तो मोबाइल नंबर स्टोर किए, हमारे को एक्सेस करना पड़ता है इन दिस पेज. दैट इज क्योंकि पासवर्ड में हमारे को पासवर्ड चेंज करना होता है. तो पासवर्ड चेंज करने के लिए वी नीड अ मोबाइल नंबर इन दिस. तो पासवर्ड चेंज में क्या करते हैं, फर्स्ट वी फेच ऑल द पासवर्ड्स इन दिस केस. तो वॉट एवर ही हैज एंटर्ड, हैव टू फेच दोज डेटा. इफ रिक्वेस्ट डॉट post if request dot method double equal to post. Inside this say मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर ऑलरेडी सेशन में है. सो करंट पासवर्ड is equal to request dot post. Inside this current password, जैसे हमने करंट पासवर्ड लिया वैसे ही वी हैव टू टेक द न्यू पासवर्ड, सेम टैग नेम दिया. सो देन वी हैव कंफर्म न्यू पासवर्ड. यहाँ पे कंडीशन चेक करो कि न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए. तो आई विल पुट वन इफ कंडीशन, इफ न्यू पासवर्ड डबल इक्वल टू कंफर्म न्यू पासवर्ड. अगर दोनों सेम है तो ऑपरेशन परफॉर्म करो, नहीं तो एल्स में मैसेज डालो कि न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड मस्ट मैच. अगर पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड सेम नहीं है तो एल्स में आएगा, इट विल डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूजर इन दिस. अगर पासवर्ड और न्यू पासवर्ड दोनों सेम है तो हियर वी अप्लाई द सेम लॉगिन का जो कंडीशन था वही, दैट इज इफ स्टूडेंट डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर इनसाइड दिस से मोबाइल नंबर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन में से उसको लेके आते हैं, सेशन ऑफ मोबाइल नंबर कॉमा पासवर्ड इज इक्वल टू करंट पासवर्ड. मतलब जो करंट पासवर्ड और मोबाइल नंबर सेम है, कॉमा सॉफ्ट डिलीट भी 0 है, डॉट एग्जिस्ट. इन दैट केस वी हैव टू चेंज द पासवर्ड. नहीं तो
हम यूजर को मैसेज देते हैं कि पासवर्ड इज इनवैलिड पासवर्ड, दैट इज इनवैलिड करंट पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड उसने जो टाइप किया है, सेशन मोबाइल नंबर तो गलत नहीं हो सकता, सो ओनली ऑप्शन इज पासवर्ड गलत हो सकता है। सो करंट पासवर्ड जो टाइप किया है अगर वो गलत है तो इट विल कम टू द एल्स पार्ट, इट विल डिस्प्ले इनवैलिड करंट पासवर्ड। अगर पासवर्ड सही है तो वी मॉडिफाई द डेटा। तो मॉडिफाई करने के लिए भी सेम यही कंडीशन को ले लो, whatever you have put in the if condition dot update बोल के एक फंक्शन आता है, अपडेट फंक्शन के अंदर वी पुट द कंडीशन इन दिस। द कंडीशन इज दैट जो हमारे को पासवर्ड सेट करने का है, पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड। सो जो न्यू पासवर्ड में टाइप किया है वो पासवर्ड में आना चाहिए। तो इतना कर दिए तो वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। एमएस इज इक्वल टू पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल, तो वी गिव अ मैसेज इन दिस। तो यहाँ पे पहले तीनों को डेटा फेच किया, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है कि नहीं चेक करते हैं। अगर सेम पासवर्ड और न्यू न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड सेम है कि नहीं चेक करते हैं। अगर बोथ आर सेम देन वी चेक वेदर करंट पासवर्ड और अभी जो करंट पासवर्ड जो टाइप किया है वो डेटाबेस में सेम है कि नहीं चेक करते हैं। अगर सेम है देन वी परफॉर्म द अपडेट ऑपरेशन। अपडेट ऑपरेशन में पासवर्ड को न्यू पासवर्ड से ऐड करते हैं, उसके बाद वी गिव अ मैसेज टू द यूजर। अगर पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड गलत है, करंट पासवर्ड गलत है तो इट विल डिस्प्ले एरर मैसेज। अगर कंफर्म न्यू पासवर्ड और न्यू पासवर्ड गलत है इट विल डिस्प्ले दिस मैसेज। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना बोले तो कंपल्सरी हैव टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम द लॉगिन पेज, क्योंकि लॉगिन पेज में आपका चेंज ये सेशन सेट होता है। सेशन सेट होने के बाद ही हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिकॉज अगर डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट किए इट विल थ्रो एन एरर। आई विल शो यू। से आई विल एंटर करंट पासवर्ड एज विवेक, से Vivek at 123 A. Say Vivek at 123 A. Though I have given everything correct, change password बोल के click करता हूँ, it will throw an error. The error is अच्छा multi value का current password spelling कुछ गलत हुआ है। Current password change password. I think yes, वो जब ChatGPT को use कर रहे थे maybe he has modified the names. He has changed the names. इसको थोड़ा करंट पासवर्ड न्यू पासवर्ड ठीक है एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड सब ठीक है, वो एक चेंज किया था उसने। So I'll enter the current password, say new password Vivek D at 123, then I will say Vivek E at 123। जब मैं चेंज पासवर्ड क्लिक करता हूँ इट सेज न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड मस्ट मैच। ओके, तो दोनों गलत दिया था। अभी मैं करंट पासवर्ड करेक्ट गलत दिया हूँ, ये दोनों सेम देता हूँ। से आई गिव विवेक डी एट 123, विवेक डी एट 123, चेंज पासवर्ड क्लिक किया, इट सेज की एरर मोबाइल नंबर, बिकॉज वो मोबाइल नंबर ही नहीं सेट नहीं हुआ है। वो कब सेट होता है, दैट इज व्हेन यू एग्जीक्यूट द लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज में मैं लॉगिन करता हूँ, स्टूडेंट होम को आया, इसका मतलब है सेशन सेट हुआ है। अभी मैं लॉगिन करता, चेंज पासवर्ड यूज करता हूँ, I will enter say NTOSH, I'll enter new password that is sorry current password is Vivek, नया पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, से विवेक डी एट 123, नेक्स्ट विवेक डी एट 123, सब कैपिटल स्मॉल सब किया, क्लिक ऑन चेंज पासवर्ड, इट सेज पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अभी मेरा पासवर्ड चेंज हो गया। So this is how we perform the change password option in this case. Okay. Yes.